Hello everybody, welcome to our channel Dream University, which is a platform to help various aspirants who aspire to go to several prestigious central universities. And I am Devanshi Kaushik, and I will be explaining you something, actually a topic in English for CUET. CUET में जैसा कि हम सब जानते हैं एक लैंग्वेज है और इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंशन भी है वहां पर। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको माइंड में रखनी चाहिए बिफोर सॉल्विंग अ कॉम्प्रिहेंशन। एक्चुअली जनरली वी आर डूइंग दिस कॉम्प्रिहेंशन थिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम, राइट? वी ऑल आर डूइंग इट मे बी सिंस क्लास 6 or 7th, बट when you solve a comprehension you might have noticed a general idea कि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो lot of time gets consumed, all right? बहुत सारा टाइम निकल जाता है और एक्चुअली पता भी नहीं चलता है कि लाइक इतना समय आप इसको दे चुके हैं। एंड इफ देयर आर एटलीस्ट लाइक 2-3 comprehensions, then definitely you have to manage your time, you have to learn how to solve a comprehension. There has to be certain rules with which you can attain an accuracy in comprehension. Comprehension सबको लगता है सबने सही किया है, बट उसमें accuracy नहीं आती है। And what I have noticed as a general pattern for my students is comprehension में उनके बहुत mistakes आते हैं। So I, as a teacher, I compiled several points, and listening to and experiences very empirically. I just, inculcated every point with my experience of students that who all faced whatever problems. So keeping all that in mind, I have, made a kind of a general idea that how you should go about solving a comprehension by which you will save your time. It will be quicker, it will be accurate, and definitely it will be very scoring. Because ultimately you will find the answers in the passage, or you have just have to apply a little of your literary aptitude and your vocabulary. Other than that, let's just begin with it. So since I have written the topic comprehension rules and easy grasping, I already explained you why I choose this heading for this, because of so many aspects which I just explained. So let's move on to the first point, that is understanding the key idea. सबसे पहले किसी भी कॉम्प्रिहेंशन या किसी भी चैप्टर को भी आप लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज आप क्या करते हैं? सो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द की आइडिया, है ना, कि उसमें क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है व्हाट इट इज अबाउट। व्हाट इट इज अबाउट, जब आप किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि किस चीज के बारे में है। लाइक दूसरी या तीसरी लाइन में everyone gets to know what it is about. So keeping that in mind while reading it, that what this comprehension is about is a necessary thing. It's very, very crucial. Now let's move on to the second point. What topic is being referred to? Almost similar. किस टॉपिक की बात हो रही है, मेन चीज किसके बारे में एक्सप्लेन की जा रही है, फर्दर इसके बारे में ही एक्सप्लेन किया जाएगा। शुरू में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, नेक्स्ट में एक्सेसिव इंफॉर्मेशन दी जाती है, एंड में कंक्लूड किया जाता है, हम सब जानते हैं। तो हम लोग को क्या देखना है कि लाइक इसमें किस चीज के बारे में, किस चीज को रेफर किया जा रहा है। ऑलराइट, एंड व्हाट ऑल एस्पेक्ट्स आर कवर्ड, what all aspects are covered, इस चीज के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें इस कॉम्प्रिहेंशन में मिलती है, किस किस एस्पेक्ट पे। सपोज मैं ले लूं, मैं पोल्यूशन ले लूं, ओके, इफ आई टेक पोल्यूशन, ओके, से पोल्यूशन, ओके, पोल्यूशन। So first of all, in the first paragraph I'll explain, I'll introduce it, है ना, introduction होगा उसका, introduction, okay. So I'll introduce this, and then maybe in the second point I'll tell about its kinds, air pollution, water pollution, है ना, sound pollution, noise pollution, and इसके kinds बता दूंगी मैं, and maybe in the last paragraph I'll be telling about its effects on, on the nature, on the people, and maybe and then I'll just be concluding it by telling the remedies, how to control it and everything. So I'll conclude it. तो क्या क्या एस्पेक्ट्स किसी भी कॉम्प्रिहेंशन या किसी भी पैसेज में कवर होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम उस चीज को सॉल्व कर रहे होते हैं तभी हमारे माइंड में रह सकता है कि हमने क्या क्या पढ़ा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम तभी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। अदर देन दिस, मेक कीवर्ड्स बाय रीडिंग एवरी क्वेश्चन। अब जो मेरी एडवाइस है आप लोगों को, है ना, ये एक ट्रिक भी मान सकते हैं आप लोग, वो ये है कि पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले, यस, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने से पहले जो भी 5 या 6 क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें आप पढ़िए, ठीक है। पढ़ के जो सीबीटी होता है ना, यानी कि कंप्यूटर पे होगा आपका जो टेस्ट होगा,
तो उसमें क्या होता है, लोग कहते हैं अंडरलाइन कैसे करें, तो डेफिनेटली यू विल बी गिविंग 2 or 3 वाइट प्लेन पेपर, है ना। तो ऑन ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू कैरी अ पेन एटलीस्ट, तो आप उस पे वो वर्ड्स लिख लीजिए, ठीक है, वो वर्ड्स आप लिख लीजिए, है ना। व्हाट लाइक सपोजिंग 5 क्वेश्चन किसी भी कॉम्प्रिहेंशन को, मैं एक आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, या तो सपोज आई राइट कि there was a park, okay, there was a park in my neighborhood, okay, it had long trees, long and dense trees, okay, and it had green colored benches, it had green colored benches, okay, it had green colored benches, and children used to play there every evening, okay, every evening, yeah. So here we are. So I've written 3 sentences. If you can see on the screen that there was a park in my neighborhood. It had long and dense trees. It had green colored benches. Children used to play there every evening. Okay. So these are the 3 things. Supposing condition, this is a very simplest thing I can write, or to make you all understand. Of course, the level will be a little difficult. Not very difficult, of course. तो ये समझाने के लिए है कि कीवर्ड्स वाले पॉइंट को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो देखिए ये आपका पैसेज है, ठीक है। इसके बाद आप सपोजिंग आपने अभी पैसेज नहीं पढ़ा है, इसमें क्या है 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन है सपोजिंग कि where was the park situated, and I'm again saying this is a very simplest example to make you understand what I mean, okay. Where was the park situated, okay, where was the park situated, okay. Suppose this is the first question, and the second question, what was the color of the benches, okay, in case what was the color of the benches, suppose these are the 2 questions, है ना। तो आपका जो पैसेज है, ये वाले पैसेज की बात कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ सुपरफिशियल एग्जांपल, है ना, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो उसमें क्या है, ये आप देखेंगे, पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। मेरे कहने का मतलब है पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन को हटा के उसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बाद में आप उन्हें पढ़िए। सपोज फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पार्क सिचुएटेड, तो इसमें कीवर्ड क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्या मेन चीज पूछी जा रही है, वो आपको अपना जो भी आपको वो पेपर मिलेगा उस पर लिख लीजिए, 1 डाल के वो लिख लीजिए। उससे क्या होगा मैं भी आपको बताती हूँ। तो पार्क सिचुएटेड इतना लिख लीजिए, ठीक है। इसे अंडरलाइन तो नहीं कर सकते हैं वहां पे, so you just write 1 park situated. Second, what was the color of the benches, इसमें क्या पूछा जा रहा है, मेनली क्या पूछा जा रहा है, color of the benches। तो सेकेंड के क्या कीवर्ड हो गया सेकेंड क्वेश्चन का, कलर ऑफ द बेंचेस। सो दिस विल बी वेरी क्रूशियल। सपोज आपने ये अंडरलाइन कर लिया, ठीक है, और मे बी थर्ड क्वेश्चन बिकम्स की थर्ड क्वेश्चन बिकम what do children used to do there, what children used to do there, children used to do there, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इसमें क्या कीवर्ड हो गया, what children doing, children doing something in the park, or what did children do,
ओके, सो दैट इज ऑफ कोर्स यू कैन सी प्लेन। तो इसका मेरा कहने का मतलब ये है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि जब आप वो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर लेंगे, ऑफ कोर्स कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इम्प्लाइड होते हैं, व्हिच आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन द पॉइंट्स फॉलोइंग दिस पॉइंट। तो इससे क्या होगा कि आप जब कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे इन कीवर्ड्स को लिखने के बाद 1 2 3 4 जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, तो जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे ना, तो आपके माइंड में जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे एकदम हिट कर जाएगा। सपोज मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करूं, देयर वाज अ पार्क इन माय नेबरहुड, तो मेरे दिमाग में आएगा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का कीवर्ड जो लिख रखा है वो पार्क सिचुएटेड आएगा, और यहाँ लिखा है देयर वाज अ पार्क सिचुएटेड इन माय नेबरहुड, तो मैं तुरंत उस क्वेश्चन को ग्रेस्प करके तुरंत आंसर लिख दूंगी। अब पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन पढ़ूंगी, फिर क्वेश्चन पे जाऊंगी, फिर मैं भूल जाऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशन में ये चीज कहाँ दी हुई थी, फिर क्वेश्चन पढ़ूंगी तो ये भूल जाऊंगी कि कॉम्प्रिहेंशन में वापस से कहाँ दी हुई थी। इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम. So in order to save your time, just go through the questions, write your keywords, go back to the comprehension, read it, and you will get all the direct answers directly, and your time will be saved, and the accuracy will be 100%. So this is a point you should remember and keep in mind कि पहले आप सवाल पूछ करिए और उसके कीवर्ड लिख लीजिए अपना, जो भी आपको पेपर मिलेगा वहां पे उस पे, और उसके बाद आप उनको डायरेक्टली ढूंढ लीजिए कॉम्प्रिहेंशन में कि वो कहाँ है, आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे वो लाइन आएगी, आपके दिमाग में स्टक हो जाएगा ये कीवर्ड मैंने लिखा था। सो दिस इज अ ट्रिक which I told you in order to become efficient, in order to become accurate, and in order to save your time. It will definitely save your time. It will be very quicker. Practice a comprehension using this technique. You will see the difference. I am sure. Okay, so this was it. Hannah, this was about it. And now moving on again to the point. Okay, so we did this point and underline important points and details. Of course, अगर आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगता है पढ़ते हुए कॉम्प्रिहेंशन, जो आपके किसी क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सिंस आप पहले पढ़ चुके होंगे, मेरी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन पढ़ के कीवर्ड्स पहले लिखिए। और दूसरी चीज ये है कि कुछ चीजें जो होती है ना वो इम्प्लाइड होती है। क्या होती है? इम्प्लाइड, है ना, इम्प्लाइड मीनिंग, हिडन मीनिंग, है ना, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। देखिए जैसे थीम क्या है ना, हिडन मीनिंग, इम्प्लाइड मीनिंग। थीम क्या है, या फिर क्या बताया जा रहा है, या फिर इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, तो इस सब का जो मतलब है ना, कंफ्यूज मत होइए, क्या सेंट्रल आइडिया क्या है, व्हाट डज द पैसेज इम्प्लाई, व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द कंसील्ड मीनिंग इन द पैसेज। इस सब का मतलब ऑल एंड ऑल यही होता है कि इस पैसेज में क्या बताया गया है, तो उसके ऑप्शंस होंगे। तो सपोज ये वाला पैसेज अगर देखें जो मैंने यहाँ बताया है, सपोज मैं इसमें एक सवाल कर लूं कि व्हाट डज दिस पैसेज इम्प्लाई, और गिव अ टाइटल टू दिस, सो यू विल सिंपली राइट अ पार्क। ठीक है, अ पार्क, सिंपल। तो सीधे पता चल जाता है 2-3 लाइन पढ़ के कि क्या है। तो उसमें इम्प्लाइड मीनिंग को देखने के लिए थोड़ा सा चीजें को थोड़ा सा क्रिटिकली और थोड़ा सा स्पेसिफिकली पढ़ना जरूरी है, कि बस थोड़ा सा दिमाग में, मैंने फर्स्ट में ही बताया था, व्हाट इज बीइंग रेफर्ड टू, किस चीज के बारे में बात हो रही है। ओके, या नेक्स्ट इज रीड द पैराग्राफ ट्वाइस। ऑफ कोर्स इम्प्लाइड मीनिंग के लिए स्पेसिफिकली बहुत जरूरी है कि आप इसे एटलीस्ट 2 बार पढ़ें। वंस फास्ट रीडिंग, पहली बार में आप थोड़ा फास्टली पढ़ेंगे उसे, जितना भी डायरेक्ट आंसर होगा आपको उसमें ही मिल जाएगा कीवर्ड के बाद, तो मेरी गारंटी है। एंड स्लो एंड स्पेसिफिक रीडिंग फॉर द सेकंड टाइम। तो ये जो सेकंड टाइम रीडिंग है ना, ये है आपके इम्प्लाइड क्वेश्चंस के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए फर्स्ट रीडिंग में 100% आप क्रैक कर लेंगे, क्योंकि आपने कीवर्ड्स क्वेश्चन के लिखे हुए हैं। सेकंड रीडिंग जो मैंने बताई, जो कि थोड़ी सी स्लो और स्पेसिफिक है, वो इम्प्लाइड क्वेश्चंस के, सेकंड पैराग्राफ क्या इम्प्लाई कर रहा है, थर्ड पैराग्राफ में क्या सेंट्रल आइडिया है, या ओवरऑल पैसेज का क्या सेंट्रल आइडिया है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं, दैट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम, बट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू डू देम if you read it carefully. Other than that, of course, let me just explain this and then I'll don't use prior knowledge about the topic. Of course, suppose मैं pollution, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि pollution के बारे में suppose कुछ बताया, तो introduction, kinds, effects, conclusion. Supposing pollution के बारे में कोई topic एक passage है, उसमें introduction दिया गया, kinds में मैंने बता दिया air pollution passage में, और मैंने बता दिया maybe water pollution, है ना, और मैंने noise pollution नहीं लिखा। ओके, मैंने नॉइज पोल्यूशन नहीं लिखा। और एक क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन रेफर्ड टू, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, काइंड्स ऑफ पोल्यूशन। ओके,
तो इसमें एक ऑप्शन तो हो गया हमारा वाटर, ऑप्शन ए वाटर एंड एयर, ठीक है। ऑप्शन बी वाटर, एयर, नॉइज, और ऑप्शन सी नन। तो ए बी सी। देखिए अगर हम अपनी प्रायर नॉलेज देखें जो हमें अब तक पढ़ाया गया है, तो इसके हिसाब से क्या होगा कि वाटर, एयर और नॉइज तीनों तरीके के पोल्यूशन होते हैं, है ना। हम सब जानते हैं कि तीनों तरीके के पोल्यूशन होते हैं, वो हमारे पास प्रायर नॉलेज है, हम छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। बट एक बात देखिए, अगर पैसेज में जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया था, अगर सिर्फ एयर एंड वाटर पोल्यूशन दिया है काइंड में और पूछा है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ पोल्यूशन, तो आप क्या मार्क करेंगे? वाटर एंड एयर, दैट मीन्स ऑप्शन ए। सो दैट्स व्हाट आई मीन, डू नॉट यूज प्रायर नॉलेज। कहने का मतलब है अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इतना ज्यादा कि गलत हो जाए कॉम्प्रिहेंशन में, नॉट इन लाइफ। एनीवे, so read the paragraph twice, once fast reading, second slow specific reading, don't use prior knowledge। समझ गए होंगे इस पॉइंट का क्या मतलब है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ज्यादातर बच्चे ये करते हैं, मैंने जनरल पैटर्न नोटिस करा है, छोटी क्लासेस में मैंने भी ये किया है। सो प्लीज डोंट डू दिस, क्योंकि एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस में। Next, while choosing a title for the comprehension, one should keep in mind its direct and implied meaning. Of course, सिर्फ ये मत देखिए कि लाइक डायरेक्टली क्या क्या रेफर हो रहा है, कभी कभी थोड़ा सा हिडन भी होता है ना। सपोजिंग ऑनेस्टी के बारे में मैं ऑनेस्टी के बारे में बताया है किसी पैराग्राफ में, और मे बी लाइक किसी और वर्च्यू के बारे में बताया है, काइंडनेस के बारे में बताया है, हेल्पफुल नेचर के बारे में बताया है। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछने लग जाए कि लाइक इसमें क्या टाइटल क्या है ना, तो आप सीधे सीधे तो ये नहीं लिख देंगे ऑनेस्टी और काइंडनेस और हेल्पफुलनेस तो ये टाइटल है, ऐसा नहीं होता है ना। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू ईदर थिंक कि ये किस बारे में बताया जा रहा है ना, इम्प्लाइड क्या है, किस चीज के, लाइक ऑनेस्टी, काइंडनेस, ये सब क्या है। दीज आर मॉरल वैल्यूज, दीज आर ह्यूमन वर्च्यूज, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। तो ये है, तो आप थोड़ा सोचेंगे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट, है ना। इस चीज में दिमाग लगाना है, जब इम्प्लाइड क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग लगाना है, और जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो दिमाग नहीं लगाना है, तब ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। तो ये है मेरे कहने का मतलब कि जब इम्प्लाइड मीनिंग हो तो आप सोचेंगे कि ये क्या है, ऑनेस्टी क्या है ना, काइंडनेस क्या है, ह्यूमन वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज, ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन वर्च्यूज। सो दैट शुड बी द टाइटल। So you have to go about it in this way. So I hope this is clear. Last few pointers, what to do if you don't know a word, understand the context and theme of the line. जैसे कि vocabulary पे जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे vocabulary पे कोई क्वेश्चन आ गया, vocab है ना, वेरी इंपॉर्टेंट vocabulary, और आपको इंक्रीज करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। I always suggest all my students to read, और बहुत सी बुक्स भी आती हैं तो आप उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। और vocabulary एक दिन में इंप्रूव होने वाली चीज नहीं है, you have to work for months, for years to improve it anyway। तो vocabulary में सपोज आपको एक वर्ड समझ नहीं आ रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। पूरा सेंटेंस पढ़ के कभी कभी हम उसका कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि अच्छा ये ऐसे बोल रहा है तो इस वर्ड का मतलब ये होगा, है ना, तो इस वर्ड का मतलब ये होगा। सो उस तरीके से आप वर्ड को थोड़ा समझने का ट्राई कर सकते हैं। दैट्स ऑल यू कैन ट्राई टू ट्रांसलेट द कॉम्प्रिहेंशन। अब कुछ लोग होते हैं जिनकी इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं, उनको नहीं समझ में आता है, तो क्या होगा कि जितना आपको समझ में आ रहा है आप उसे अपने शब्दों में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जैसे एक पैराग्राफ पढ़िए, उसके बाद आपको खुद से जितना समझ में आ रहा है कि हाँ मतलब इसका मतलब ये हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसका मतलब यही हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। बाकी डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे लगता है वो लोग भी सॉल्व कर सकते हैं जिनको नहीं आती है इंग्लिश उतनी अच्छी, लेकिन इम्प्लाइड के लिए थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई आप करिए, अपने वर्ड्स में खुद को उसको ट्रांसलेट करिए। लेकिन ये पॉइंट सिर्फ उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश बहुत वीक है अभी, and that's all okay, we all are good at one thing or the other, and that's all okay. So you should try and translate it in your own words, and then you can maybe crack it. Okay, practice, keep practicing, keep solving questions. Comprehensions needs practice, and you have to remember these rules, remember the tricks I told you, remember the points to be kept in mind I told you. This is very crucial, and this will really, it can enhance your marks and it can take you down. Any one thing comprehension will do in your exam. So all the very, very best to all of you, and I hope this lecture might be beneficial for you, since it is the first lecture of this batch. And I wish you luck from my side and from Dream University's side, and prepare very, very well. Keep practicing. All the best. Thank you.